حاضرین گرامی، آج کے خطبہ جمعہ کا میرا موضوع ہے کہ اعمال پر مداومت، کہ ہم کوئی عمل کریں تو اس عمل کو برابر کرتے رہیں، ہمارے عمل میں استمرار ہونا چاہیے اور دوام ہونا چاہیے۔ اور یہ دوام کیسے آئے گا؟ اس سے پہلے یہ کہ عبادت کس چیز کو کہتے ہیں۔ عبادت اللہ رب العالمین کے لیے، اللہ رب العالمین کی رضا کے لیے، اس کی خوشنودی کے لیے کیے گئے اعمال کا نام عبادت ہے۔ عبادت کی بہت ساری شکلیں ہیں، جن میں سب سے پہلی چیز توحید، دوسری چیز نماز، زکوٰۃ، روزہ، حج، اسی طرح سے دیگر عبادتیں جیسے قرآن کریم کی تلاوت، اللہ رب العالمین کا ذکر و اذکار، نوافل کا اہتمام، یہ ساری چیزیں عبادت میں شامل ہیں۔ اور ہم جو عبادت کرتے ہیں، چاہے وہ ہمارا قرآن کا پڑھنا ہو، نماز کا پڑھنا ہو، توحید پر قائم رہنا ہو، ان تمام چیزوں میں ہمیشگی ہونی چاہیے، لگاتار یہ امر ہمیں انجام دینا چاہیے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، قل آمنت باللہ ثم استقم، کہ تم کہو کہ میں اللہ رب العالمین پر ایمان لایا اور اس پر ڈٹ جاؤ۔ ایسا نہیں ہونا چاہیے کہ لا الہ الا اللہ تو پڑھ لیا، لا الہ الا اللہ کے تقاضوں کو سمجھ لیا، لیکن ہمارے اعمال کچھ اور ہی کہانی کہہ رہے ہوں۔ اللہ رب العالمین کو معبود اور اللہ رب العالمین کو اپنا سب کچھ ماننے کے بعد اگر ہم اپنا سر دوسروں کی درگاہوں پر اور دوسروں کے درباروں میں جھکاتے ہیں تو یقین مانیے کہ ہمارے عبادت میں اور ہمارے دلوں میں کھوٹ ہے۔ اسی طرح سے دوسری عبادت نماز، اس کے اندر بھی مداومت ہونی چاہیے۔ ایسا نہیں کہ کبھی پڑھا کبھی چھوڑ دیا۔ عبادتوں کے سلسلے میں ہمارے معاشرے میں اور ہمارے سماج میں جو رویہ ہے وہ یقین مانیے تین قسموں پر ہے۔ ایک تو وہ لوگ ہیں جو بالکل عبادت کرتے ہی نہیں، نہ کے برابر، ان کے لیے مسجد آنا اتنا مشکل کام ہوتا ہے کہ وہ دن بھر چوراہوں پر بیٹھے رہیں گے، مٹر گشتی کریں گے، لیکن مسجد تک نہیں آئیں گے۔ ان میں بھی دو قسم کے لوگ ہوتے ہیں۔ ایک وہ لوگ جو عبادتوں کا باقاعدہ مذاق اڑاتے ہیں کہ ارے نماز پڑھ کے کیا کر لے گا، اللہ کی عبادت کر کے کیا پایا۔ ایسے لوگ ملت اسلامیہ سے خارج ہیں۔ اور دوسری قسم کے لوگ وہ ہیں جو عبادت تو نہیں کرتے لیکن عبادت کا انکار اور اس کی تضحیق نہیں کرتے، اس کا مذاق نہیں اڑاتے۔ ایسے لوگ اسلام سے خارج تو نہیں لیکن خارج کے برابر ہی ہیں، بلکہ اکثر علماء نے ایسے لوگوں کو بھی کافر ہی قرار دیا ہے۔ اللہ رب العالمین نے فرمایا، اقیموا الصلاۃ ولا تکونوا من المشرکین، کہ اے لوگوں نماز قائم کرو، مشرکوں میں سے نہ ہو جاؤ۔ نماز قائم کرو، اقیموا الصلاۃ ولا تکونوا من المشرکین، کہ نماز قائم کرو اور مشرکین میں سے نہ ہو جاؤ۔ پتہ یہ چلتا ہے کہ اگر کوئی شخص نماز نہیں قائم کرتا تو وہ مشرکین میں سے ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، بین العبد و بین الکفر ترک الصلاۃ، کہ مومن بندے اور کافر کے درمیان فرق جو ہے وہ یہ ہے کہ نماز، اگر بندہ نماز پڑھتا ہے تو وہ مومن ہے، اگر بندہ نماز کے لیے مسجد تک آتا ہے تو وہ مومن ہے، اگر نہیں آتا تو وہ کافر۔ ذرا ہم اپنا محاسبہ کریں، اپنے رویے کو دیکھیں کہ ہم کس طرح سے نمازوں کے ساتھ سلوک کر رہے ہیں۔ ایک تو وہ لوگ ہوئے جو عبادت ہی نہیں کرتے، دوسری قسم ان لوگوں کی ہے جو عبادت تو کرتے ہیں لیکن کبھی کر لیا، من میں آیا اور کبھی چھوڑ دیا۔ اس میں بھی دو قسم کے لوگ ہیں۔ ایک وہ لوگ جو عبادت آتے ہیں کرنے تو بڑی اچھی سے عبادت کرتے ہیں،
لیکن پھر درمیان میں چھوڑ دیتے ہیں. اللہ رب العالمین نے ایسے لوگوں کے لیے وعید سنائی کہ فویل للمصلین الذین هم عن صلاتهم ساہون. ایسے نمازیوں کے لیے ویل ہے، بربادی ہے، تباہی ہے، جہنم کا ایک گڑھا ہے. الذین هم عن صلاتهم ساہون، جو اپنی نمازوں میں سستی برتتے ہیں. سستی کا مطلب یہی ہوتا ہے کہ جب موقع ملا پڑھ لیا، اور کبھی بیٹھے رہے تو بیٹھے رہے، نہیں پڑھا، کوئی پرواہ نہیں، کوئی فکر نہیں. ایک وہ لوگ ہیں جو کبھی کبھار آتے ہیں بس سر پٹک کے چلے جاتے ہیں. ایسے لوگوں کا ذکر بھی اللہ نے قرآن میں کیا اور کہا کہ یہ منافق لوگ ہیں. کون لوگ ہیں؟ منافق لوگ ہیں کہ وَإِذَا قَامُوا إِلَى الصَّلَاةِ قَامُوا كُسَالَىٰ يُرَاءُونَ النَّاسَ وَلَا يَذْكُرُونَ اللَّهَ إِلَّا قَلِيلًا. کہ جب کھڑے ہوتے ہیں تو بڑی ہی سستی کاہلی کے ساتھ کھڑے ہوتے ہیں، بڑی ہی سستی اور کاہلی کے ساتھ کھڑے ہوتے ہیں. وَلَا يَذْكُرُونَ اللَّهَ إِلَّا قَلِيلًا، اور اللہ کا ذکر بہت کم کرتے ہیں. ہم نے دیکھا ہوگا اپنی مسجدوں میں ایسے نماز پڑھنے والوں کو بھی کہ آتے ہیں، سر پٹکتے ہیں اور روانہ باشد. یقین مانیے کہ ایسے لوگوں کے بارے میں اللہ رب العالمین نے بڑی سخت وعیدیں نازل کی ہیں. یہ منافقین کی نماز ہے کہ ہم آئیں مسجد کو اور اللہ کا ذکر نہ کریں، اللہ رب العالمین کے ذکر و اذکار سے اپنے آپ کو بچا کر اور نکل جائیں فوراً. اللہ نے ایسے منافقین کے لیے کیا کہا ہے کہ ان المنافقین فی الدرک الاسفل من النار، جہنم کے سب سے نچلے طبقے میں ہوں گے. تیسرا وہ گروہ ہے جو اللہ رب العالمین کی عبادت پوری پابندی کے ساتھ کرتا ہے، اور ایسے ہی لوگوں کے لیے نعمت ہے، ایسے ہی لوگوں کے لیے فائدہ ہے، اور ایسے ہی لوگوں کے لیے اللہ رب العالمین کی رضا ہے. قرآن کو پڑھیے اور سیکھیے. اللہ نے کہا والذین هم علی صلواتهم یحافظون، کہ وہ لوگ جو اپنی نمازوں پر پابندی برتتے ہیں، وہ لوگ جو اپنی نمازوں کی حفاظت کرتے ہیں، وہ لوگ جو مستقل نماز پڑھتے ہیں، اولئک هم الوارثون، یہی لوگ حقیقی معنوں میں وارث ہیں. کس چیز کے؟ الذین یرثون الفردوس هم فیہا خالدون. جنت کے حقیقی وارثین وہ لوگ ہیں جو نمازوں کی پابندی کرتے ہیں، نمازوں کی حفاظت کرتے ہیں. دوسری جگہ پر سورہ معارج میں اللہ نے کہا کہ الذین هم علی صلاتهم یحافظون اولئک فی جنات مکرمون، کہ وہ لوگ جو اپنی نمازوں پر محافظت برتتے ہیں، ہمیشگی برتتے ہیں. اولئک فی جنات مکرمون، یہی تو وہ لوگ ہیں جو جنت میں عزت بخشے جائیں گے اور بڑے ہی باعزت انداز میں جنت میں داخل کیے جائیں گے. ہم میں سے کون ہے جو اللہ رب العالمین کی رضا اور خوشنودی نہیں چاہتا؟ ہم میں سے کون ہے جو اللہ رب العالمین کی جنت نہیں چاہتا؟ ہم میں سے کون ہے جو جنت کا وارث نہیں بننا چاہتا؟ تو ذرا اپنے اعمال کا محاسبہ بھی کیجئے کہ ہم کون سے گروہ سے تعلق رکھتے ہیں. کیا ہم اللہ کی عبادت کرتے ہیں یا نہیں کرتے ہیں؟ اللہ رب العالمین کی عبادت کرتے ہیں تو عبادت کا انداز کیا ہے؟ کہیں ایسا تو نہیں کہ ہم سستی اور کاہلی کے شکار ہیں؟ ہم اللہ رب العالمین کے اس وعید کے مستحق بن رہے ہیں جو اللہ نے کہا کہ فویل للمصلین، نمازیوں کے لیے ویل ہے. الذین هم عن صلاتهم ساہون، ان نمازیوں کے لیے جو اپنے نمازوں میں سستی برتتے ہیں اور کاہلی سے کام لیتے ہیں. میرے موضوع کا دوسرا ٹکڑا کہ مداومت ہونی چاہیے، اور یہی بات میں سمجھانا چاہتا ہوں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ احب الاعمال الی اللہ ادومہ وان قل، کہ اللہ رب العالمین کے نزدیک سب سے محبوب عمل اور سب سے بہترین عمل وہ ہے کہ جو لگاتار ہو، ہمیشہ ہو. وان قل، اگرچہ تھوڑی ہی کی جائے، اگرچہ تھوڑی ہی کی جائے، لیکن ہمارے اعمال میں مداومت ہونی چاہیے، ہم لگاتار اس عبادت کو انجام دیں. آج ہماری صورتحال تو یہ ہے کہ ہم فرائض میں کوتاہی برتتے ہیں کہ جس کے لیے کوئی بخشش ہی نہیں ہے. چاہے جائے کہ ہم نوافل کا اہتمام کریں، قرآن کی تلاوت کا اہتمام کریں،
अल्लाह रब्बुल आलमीन के जिक्र और अज़कार का एहतमाम करें, ये सारी चीजें तो हमारी जिंदगी से बहुत दूर हैं। लोगों, लौट आओ अल्लाह रब्बुल आलमीन की जानिब। हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम की ज़बानी अल्लाह रब्बुल आलमीन ने कहलवाया और कहा, ईसा अलैहिस्सलाम ने कि वअौसानी बिस्सलाति वज़्ज़काति मा दुम्तु हय्या, कि मुझे वसीयत की गई है कि मैं नमाज कायम करूं और ज़कात अदा करूं मा दुम्तु हय्या, जब तक मैं जिंदा रहूं। यानी सांस में जब तक बाकी है और आखिरी सांस जब तक चल रही है, हमारे ऊपर से इबादत और फरीज़े इबादत ये जायल नहीं होता। हमें अल्लाह की इबादत करनी है, हमें नमाज पढ़नी है, अगरचे अपनी आखिरी सांस ले रहे हों। इसी तरह से इबादत में मुदावमत के बहुत सारे फायदे हैं, जिनमें से सबसे पहला फायदा कि जब आप इबादत में हमेशगी बरतेंगे तो ये चीज आपको बुराइयों से रोकेगी। अल्लाह रब्बुल आलमीन ने फरमाया, इन्न सलात तन्हा अनिल फहशाई वल मुनकर, कि नमाज ये आपको बुराइयों से रोकती है। आज हम में से बाज ऐसे हैं जो नमाज पढ़ते हैं, लेकिन नमाज पढ़ के मस्जिद से निकले और अपनी उन्हीं बुराइयों में मुब्तला हो जाते हैं। कोई कांटा मारने में मुब्तला, कोई गीबत करने में मुब्तला, कोई झूठ बोलने में मुब्तला। इस तरह के अम्र हम नमाज से निकलने के बाद फौरी तौर पर अंजाम देते हैं और बाकायदा इसको हम अपने लिए फखरिया अंदाज में बयान भी करते हैं कि आज फलां को काट दिया या फलां के साथ ऐसा कर दिया। ये इस वजह से है कि हम इबादत को इबादत समझकर और मुस्तकिल अंदाज में नहीं बरत रहे हैं, वरना अल्लाह का कलाम है। अल्लाह का कलाम तो झूठा नहीं हो सकता ना। अल्लाह ने कहा, इन्ना सलात तन्हा अनिल फहशाई वल मुनकर, कि नमाज जो है ये फवाहिश से और मुनकरात से रोकती है। अगर हम नमाज पढ़ने के बाद बुराई अंजाम दे रहे हैं और बुराई के काम कर रहे हैं, तो बताइए कि हम में खोट है या कुरान की बात झूठी है। जाहिर है कुरान सच्चा है, हमारी इबादतों में कहीं ना कहीं खोट है। इसलिए हमें मुदावमत बरतनी चाहिए इबादत में, तो हम धीरे धीरे बुराइयों से दूर होते चले जाएंगे। रावी हदीस हज़रत अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु हैं, कहते हैं कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से कहा गया कि इन्ना फुलानन युसल्ली बिल्लैल, कि फला जो है वो रात को नमाज पढ़ता है। फ़इज़ा अस्बह सरिक, और जब सुबह होती है तो चोरी करता है। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, इन्नहु सयन्हाहु मा तक़ूल, कि अनक़रीब वो इस चीज से रोक दिया जाएगा, रुक जाएगा जो तुम बयान कर रहे हो। अगर वो अपनी नमाज पर और अपने क़याम पर मुदावमत बरतता है, हमेशगी बरतता है, तो वो इस बुराई से रुक जाएगा और चोरी को छोड़ देगा। आज हम इबादत अंजाम दे रहे हैं, नेकियां कर रहे हैं, उसके बावजूद भी हमारी हालत में कोई तब्दीली नहीं आ रही है। इसलिए हमें असरे नौ अपने इबादतों में और अपने चाल चलन में, अपने आमाल पर गौर करना चाहिए। इसी तरह से दूसरा फायदा कि आमाल में अगर हम मुदावमत बरतते हैं तो अल्लाह रब्बुल आलमीन इसके जरिए से हमारी खताओं को, हमारे गुनाहों को माफ करता है। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अराअयतुम लौ अन्ना नहरन बिबाबी अहादिकुम यगतसिलु फीहि कुल्ल यौमिन खम्सन मा तक़ूलु ज़ालिक हल यबक़ा मिन दरनिही शैउन, कि ऐ लोगों तुम्हारा क्या ख्याल है, तुम क्या सोचते हो कि एक आदमी है, उसके घर के आगे से नहर चल रही है और वो आदमी उसमें रोजाना 5 मरतबा नहाता है, 5 मरतबा नहाता है, तो क्या उसके जिस्म पर कोई गंदगी बाकी रह जाएगी? सहाबा कराम ने जवाब दिया कि नहीं, ला यबक़ा मिन दरनिही शै, कि उसके जिस्म पर कोई गंदगी बाकी नहीं रहेगी। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, फ़ज़ालिका मिस्लु सलावातिल ख़म्स, कि ऐसे ही 5 नमाजों की मिसाल है, यम्हुल्लाहु बिहिन्ना अल खताया, अल्लाह रब्बुल आलमीन इन नमाजों के जरिए से आपके गुनाहों को मिटाता है, आपके गुनाहों को खत्म करता है।
सवाल ये है कि ये उनके लिए है जो नमाजों की पाबंदी करते हैं, नमाजों पर मुदावमत बरतते हैं। आज हम वाकई पांचों नमाज के पाबंद हैं? जरा अपने दिल पर हाथ रख के कहिए कि हम में से कितने ऐसे हैं जो 5 वक्त की नमाज की पाबंदी करते हैं और पूरे नमाज को वक्त पर हम अदा करते हैं। ये बात हकीकत ये है, बड़ी तल्ख है, लेकिन उसके बावजूद सच्चाई भी कि हम नमाज की अहमियत को एकदम बिल्कुल तर्क कर चुके हैं, समझ ही नहीं रहे हैं और नमाजों से इस कदर गाफिल हो चुके हैं कि हम इसकी अहमियत को और इसकी फजीलत को हमने अपने जूते की नोक पर रख लिया है। कोई परवाह नहीं होता है, मुअज्जिन हय्या अलस सलाह हय्या अलल फलाह, आओ नमाज की तरफ, आओ कामयाबी की तरफ पुकारता रहे, हमें कोई परवाह नहीं होती। इसी तरह से अगर हम आमाल पर मुदावमत बरतें तो उसका फायदा ये होता है कि अल्लाह रब्बुल आलमीन हमें हुस्ने खात्मा नसीब करता है कि हमारी मौत जो आती है वो ईमान पर होती है। अल्लाह रब्बुल आलमीन ने फरमाया, युसब्बितुल्लाहु अल्लज़ीना आमनू बिल क़ौलि साबिति फिल हयातिद दुनिया व फिल आखिरह, कि अल्लाह रब्बुल आलमीन उन लोगों को जो ईमान लाए कौले साबित पर, यानी ला इलाहा इल्लल्लाह को जाना, ला इलाहा इल्लल्लाह को समझा और उसके तकाज़ों को पूरा किया, तो अल्लाह रब्बुल आलमीन उसे दुनिया और आखिरत दोनों में साबित कदम रखता है। आखिर हम दुनिया में इसीलिए तो आए हैं कि हमारी आखिरत संवर जाए। हम दुनिया में इसीलिए आए हैं कि हम अपनी आखिरत को बेहतर बना लें, अल्लाह की रजा हासिल कर लें। और अगर अल्लाह रब्बुल आलमीन हमारी आखिरत बेहतर कर रहा है तो इससे बड़ी नेमत हमें और क्या चाहिए। इसी तरह से अगर हम मुदावमत बरतते हैं तो क़यामत के दिन, जिस दिन कोई साया नहीं होगा, सूरज इतना नीचे आ जाएगा कि आदमी हाथ उठाए तो हाथ को लग जाए। आज सूरज इतनी बुलंदी पर है, हमें ये धूप, ये गर्मी और ये गर्मी की शिद्दत जरा भी बर्दाश्त नहीं होती। पंखा है, एसी है, तरह तरह की आसाइशें हैं, लेकिन उस दिन जिस दिन कोई पर्दा नहीं होगा, कोई आड़ नहीं होगा, हर आदमी अपने अमाल के बकदर पसीनों में सराबोर होगा। उनमें से चंद जमातें ऐसी होंगी जिन्हें अल्लाह रब्बुल आलमीन के अर्श का साया नसीब होगा। उनमें से एक वो शख्स होगा कि वरजुलुन क़ल्बुहु मुअल्लक़ुन बिल मसाजिद, ऐसा आदमी जिसका दिल मस्जिदों में लटका रहता था। ज़ोहर की नमाज पढ़ी, घर गया, उसे फिक्र रहती थी कि असर की नमाज के लिए जाना है। ऐसा ना हो कि असर की नमाज छूट जाए। असर की नमाज पढ़ी, मगरिब की नमाज की फिक्र होती, मगरिब पढ़ी, ईशा की नमाज की फिक्र होती। ऐसे शख्स को अल्लाह अपने अर्श के साये में जगह देगा। जाहिर है हम में से हर शख्स चाहेगा कि हम अल्लाह रब्बुल आलमीन के अर्श के साये में हों क़यामत के दिन, लेकिन उसके लिए हमें अमल करना होगा। उसके लिए हमें सही मानों में शरीयत के मुताबिक अपनी जिंदगी गुजारनी होगी, तब हम अल्लाह रब्बुल आलमीन के साये के मुस्तहिक करार पाएंगे। बसूरत दीगर अपने अमाल के मुताबिक अजाब झेल रहे होंगे। इसी तरह से ये मुदावमत अल्लाह रब्बुल आलमीन इसके जरिए से हमें जन्नत नसीब करता है। जैसा कि मैंने शुरू ही में बयान किया कि जो लोग अपनी नमाजों पर मुदावमत बरतते हैं, ऐसे लोग अल्लाह रब्बुल आलमीन की जन्नत के वारिस होंगे। ये मौजू अख्तियार करने का एक सबब ये रहा कि अभी इससे पहले पिछला महीना शव्वाल खत्म हुआ, रमजान के महीने में हमारी मस्जिदें आबाद होती थी, हमारी मस्जिदें आबाद होती थी। हम बाकायदा कुरान की तिलावत करते थे, अल्लाह रब्बुल आलमीन का जिक्र अज़कार करते थे, सुनन और नवाफिल का एहतमाम करते थे, अल्लाह रब्बुल आलमीन के सामने गिरियाजारी कर रहे होते थे। अल्लाह रब्बुल आलमीन के लिए बहुत सारी इबादतें हमने की। लेकिन रमजान के बाद हमारे मस्जिदों की हालत क्या हो जाती है? रमजान के बाद हमारे मस्जिदों की हालत क्या हो जाती है? ये बात बयान करने की जरूरत नहीं है।
हम अपने मस्जिदों की हालत देख सकते हैं कि वही लोग जो रमजान में पूरी रात जाग जाग के कुरान की तिलावत करते थे, अब मस्जिदों में भी आना पसंद नहीं करते हैं। वो लोग जो रातों को क़यामुल लैल का एहतमाम करते थे, वो लोग मस्जिदों से गायब हैं। वो लोग जो अल्लाह रब्बुल आलमीन के जिक्र व अज़कार से अपनी ज़बानों को, अपने दिल को मुअत्तर रखते थे, वो अब नजर नहीं आते। आखिर क्यों ऐसा मामला है और क्यों हम ऐसा कर रहे हैं? क्या सिर्फ रमजान में हमारी इबादत होती है? क्या अल्लाह ने ऐसा कहीं फरमान जारी किया है कि सिर्फ रमजान में इबादत कर लो, उसके बाद साल भर इबादत ना करो? नहीं दोस्तों, अल्लाह रब्बुल आलमीन ने इबादत के लिए हर दिन मुकर्रर किया है और अल्लाह की इबादत हर दिन होनी चाहिए। रमजान तो एक ऑफर का महीना होता है कि उसमें आप ज्यादा इबादत करके अल्लाह की रजा और खुशनुदी हासिल कर लें, लेकिन हम रमजान भर तो इबादत करते हैं और रमजान के बाद गायब। रमजान का मकसद क्या है जानते हैं? लअल्लकुम तत्तकून, ताकि हम मुत्तकी बन जाएं, परहेजगार बन जाएं, अल्लाह की खशियत अपने दिल के अंदर पैदा कर लें, अल्लाह का डर पैदा कर लें। कहाँ हम अल्लाह से डरने वाले बनते हैं? कहाँ हमारे दिल में अल्लाह की खशियत आती है? कहाँ अल्लाह का खौफ हमारे दिल में रह जाता है? क्या आप तसव्वुर कर सकते हैं कि एक दिल जो अल्लाह के खौफ से भरा हुआ हो वो तारिके नमाज हो? एक दिल जिसमें अल्लाह रब्बुल आलमीन का डर बसा हुआ हो वो मस्जिदों से दूर हो सकता है? एक दिल जिसमें अल्लाह की खशियत हो वो नवाफिल और तिलावत से दूर हो सकता है? जाहिर है नहीं। पता ये चला कि हम मकासिद से दूर हो चुके हैं। हम रमजान भर तो किसी तौर इबादत करके गुजार लेते हैं कि चलो लोग क्या कहेंगे कि रमजान में भी नमाज नहीं पढ़ता। यकीन मानिए कि यही मामला है। अल्लाह रब्बुल आलमीन ने फरमाया कि ऐ लोगों, वला तकूनु कल्लती नक़ज़त ग़ज़लहा मिन बादि क़ुव्वतिन अनकासा, कि उस औरत की तरह से ना हो जाओ कि जिसने एक रस्सी को बड़ी मजबूती के साथ बटा और फिर बैठ के उस रस्सी को खोलने लगी और खोल के सब अलग कर दिया। ऐसे ही अगर हम रमजान में इबादत करते हैं और रमजान में इबादतों की पाबंदी करते हैं और नवाफिल और तिलावत का इस्तेमाल करते हैं, लेकिन रमजान के बाद अगर हम इबादतों से दूर हो जाते हैं तो हमारा मामला बिल्कुल उस औरत की तरह से है कि हमने अल्लाह की रजामंदी तो हासिल की, लेकिन फिर अल्लाह रब्बुल आलमीन की गजब को दावत दिया। इसीलिए अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि अहब्बुल आमाली इलल्लाह अदवमहु व इन क़ल्ला, कि ऐ लोगों, अल्लाह रब्बुल आलमीन के नजदीक सबसे बेहतर और सबसे महबूब अमल वो है कि जो लगातार हो, बराबर हो। कोई अमल अंजाम दे, रोजाना हम करें। सुबह में तिलावत की आदत हमने डाल ली है, रोजाना हम अल्लाह रब्बुल आलमीन के कलाम की तिलावत करें। जिक्र अज़कार की आदत है, रोजाना हम अल्लाह रब्बुल आलमीन का जिक्र अज़कार करते रहें। नमाज की आदत है, रोजाना पढ़ें, मुस्तकिल पढ़ें, पाबंदी के साथ पढ़ें। ये हमारा रवैया होना चाहिए। अल्लाह के रसूल ने कहा कि हमेशगी होनी चाहिए, अगर से मुख्तसर हो। हम नवाफिल का एहतमाम करते हैं, 2 रकात पढ़ते हैं, रोजाना 2 रकात पढ़ें। ऐसा नहीं कि एक दिन 20 रकात पढ़ लिया और उसके बाद 1 महीना नमाज ही से गायब है। ये हमारा रवैया नहीं होना चाहिए। हज़रत आयशा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा से पूछा गया अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में, तो हज़रत आयशा कहती हैं अमलुहु दीमतन, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जो अमल होते थे वो ऐसे होते थे कि लगातार आप अंजाम देते थे। कोई नमाज पढ़ी तो रोजाना आप उस नमाज को पढ़ा करते थे। कोई नेक अमल अंजाम दिया, उस अमल को आप रोजाना अंजाम देते थे। ऐसा नहीं कि एक मर्तबा पढ़ लिया और फिर दूर हो गए। इसलिए हमें भी चाहिए कि हम अल्लाह रब्बुल आलमीन के अहकाम को अपनी निगाह में रखें, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अमल को अपनी निगाह में रखें। कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का अमल ऐसा होता था कि इज़ा अमिला अमलन अस्बततहु, कि कोई अमल करते थे
उस पर साबित कदमी के साथ डट जाते थे, जम जाते थे। लेकिन हमारा रवैया क्या होता है, हम कोई अमल किसी माह में अंजाम देते हैं पूरी पाबंदी के साथ और पूरे जी जान के साथ, और उसके बाद धीरे धीरे हमारा मामला खत्म होता चला जाता है। रमजान का महीना ले लें कि रमजान में हमने अल्लाह की इबादत की, नमाजों की पाबंदी की, सदकात का एहतमाम किया, ज़कात अदा की और बहुत सारे उमूर अंजाम दिए, लेकिन रमजान खत्म होते ही हम सारी इबादतों से दूर हो गए। तो हमें अपने अमाल पर गौर करना चाहिए, हमें अपने अमल में मुदावमत लानी चाहिए, अल्लाह से तौफीक मांगनी चाहिए, अल्लाह से दुआ करना चाहिए कि अल्लाह रब्बुल आलमीन तू हमें मुदावमत की तौफीक दे, अल्लाह हमें रोजाना 5 वक्त की नमाज की पाबंदी करने की तौफीक दे, अल्लाह ताला तू हमें अमाल में और इबादत में मुदावमत बरतने की तौफीक दे। दुआ के बगैर कुछ हासिल नहीं है। इसी तरह से एक आखिरी बात मौजू से हट के, ये नसीहत कि ऐ लोगों, जुमा की नमाज के लिए हम आते हैं, जुमा का खुतबा सुनना ये फर्ज है। अल्लाह रब्बुल आलमीन ने फरमाया, या अय्युहल्लज़ीना आमनू इज़ा नूदिया लिस्सलाति मिन यौमिल जुमुअह फस्अऊ इला ज़िक्रिल्लाहि व ज़रुल बैय, कि ऐ लोगों, जब नमाज के लिए पुकारा जाए तो तुम दौड़ पड़ो, फस्अऊ इला ज़िक्रिल्लाह व ज़रुल बैय, और दुनिया के जो उमूर हैं उसको छोड़ दो। आज हम जुमा के खुतबे के लिए क्या करते हैं, इंतजार करते हैं कि इमाम साहब कितने बजे खत्म करेंगे, इमाम साहब कितने बजे खत्म करेंगे, उस एतबार से हम इंतजार करके चलते हैं कि चलो मस्जिद में 2 मिनट सुनेंगे इमाम साहब को, उसके बाद जमात खड़ी हो जाएगी, फिर मस्जिदों से निकल कर बाहर। मामला तो यहाँ तक है कि ना तो पहले यानी नमाज से पहले सुन्नतों का एहतमाम कर पाते हैं और ना ही नमाज के बाद हम सुन्नत का एहतमाम करते हैं। आए 2 मिनट का खुतबा सुना और नमाज पढ़ी, रवाना बासर। ये रवैया हमारा बतलाता है कि हम दीन से कितने बेजार हो चुके हैं, ईमान का हमारे दिलों में क्या हाल है इस चीज को दिखलाता है। लोगों, अल्लाह रब्बुल आलमीन की इबादत मुस्तकिल करो, और ये तभी मुमकिन है जब हम अपने दिल के अंदर तकवा पैदा करें, अल्लाह रब्बुल आलमीन का डर पैदा करें, अल्लाह रब्बुल आलमीन की खशियत पैदा करें। और यही वजह है कि अल्लाह रब्बुल आलमीन ने और अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमें जितनी इबादतों की जानिब रहनुमाई की है, तमाम इबादतों का वाहिद मकसद बतलाया है कि तुम मुत्तकी बन जाओ। या अय्युहन्नास उअ्बुदू रब्बकुमुल्लज़ी खलक़कुम वल्लज़ीना मिन क़ब्लिकुम लअल्लकुम तत्तक़ून, ऐ लोगों, अल्लाह की इबादत करो, अपने उस रब की इबादत करो जिसने तुमको पैदा किया, तुमसे पहले लोगों को पैदा किया, लअल्लकुम तत्तक़ून, ताकि तुम मुत्तकी बन जाओ। या अय्युहल्लज़ीना आमनू कुतिबा अलैकुमुस सियाम कमा कुतिबा अलल्लज़ीना मिन क़ब्लिकुम लअल्लकुम तशकुरून, कि ऐ लोगों, हाँ, अल्लाह रब्बुल आलमीन ने रोजा फर्ज किया है जैसे तुमसे पहले लोगों पर फर्ज किया। मकसद क्या है, ताकि तुम मुत्तकी बन जाओ। लन यनालल्लाह लुहुमुहा वला दिमाउहा वलाकिन यनालुहु तक़वा मिनकुम, ऐ लोगों, अल्लाह रब्बुल आलमीन को ना तुम्हारा गोश्त पहुंचता है और ना ही तुम्हारा खून, क्या पहुंचता है, तुम्हारे दिल का तकवा, तुम्हारी खशियत। इसी तरह से आप इबादतों का मुताला करते जाएं। शरीयत ने जितनी इबादतों से हमें मुकल्लफ किया है, सबका वाहिद मकसद है कि हम मुत्तकी बन जाएं, परहेजगार बन जाएं, अल्लाह से डरने वाले बन जाएं। दुनिया और दुनिया की रंगीनियों से सिर्फ उसी कदर लुत्फ अंदोज हों जितनी शरीयत ने इजाजत दी है। इस्लाम का जो कलादा हमारे गले में है उसको हमेशा याद रखें और इस्लामी हुदूद की रियायत करते हुए इस दुनिया को जिएं, हम मुत्तकी बनकर जिएं। और जब हमारे दिल के अंदर तकवा पैदा हो जाएगा तो हम अल्लाह रब्बुल आलमीन की इबादत पूरी पाबंदी के साथ करेंगे। हम लोग मुसलमान सिर्फ 1 महीने के लिए ना बनकर पूरे साल के लिए बन जाएंगे। हम इबादत को सिर्फ 1 महीने में महसूर ना करके पूरे 12 महीने अल्लाह की इबादत करेंगे। और यही तो अल्लाह का मकसद है।
شروع میں نے آیت پڑھی تھی کہ فسبح بحمد ربک وکن من الساجدین، کہ اپنے رب کی تسبیح بیان کیجیے. فسبح بحمد ربک وکن من الساجدین، اپنے رب کی تسبیح بیان کیجیے، اپنے رب کی تعریف بیان کیجیے. وکن من الساجدین، اور سجدہ کرنے والوں میں سے بن جائیے. وَعْبُدْ رَبَّكَ حَتَّى يَأْتِيَكَ الْيَقِينُ، اور اپنے رب کی عبادت کیجیے کب تک؟ حَتَّى يَأْتِيَكَ الْيَقِينُ، یہاں تک کہ موت آ جائے. شریعت نے جو عبادت اور جن عبادتوں سے ہمیں مکلف کیا، جن عبادتوں کا مکلف بنایا ہے، وہ عبادتیں ہمیں پوری زندگی کرنی ہیں. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے اللہ رب العالمین کہہ رہے ہیں کہ وَاعْبُدْ رَبَّكَ حَتَّى يَأْتِيَكَ الْيَقِينُ، کہ آپ اپنے رب کی عبادت کیجئے یہاں تک کہ موت آ جائے. اور یہی مقصود ہے کہ اے لوگوں اپنی عبادت میں مداومت برتو یہاں تک کہ موت آ جائے، اور موت کے آنے تک اللہ رب العالمین کی عبادت کرتے رہو. دعا ہے بار الہ ہم تمام مسلمانوں کو نیک عمل کی توفیق دے. بار الہ ہمیں جب تک زندہ رکھ ایمان پر رکھ، جب خاتمہ ہو تو ایمان پر ہو. بار الہ ہمیں اپنے اعمال پر، اپنے عبادات پر، اور اپنے تمام جو عمل ہم انجام دے رہے ہیں، اے اللہ تو ان پر مداومت برتنے کی توفیق دے. بار الہ کو توفیق دے کہ ہم اپنے اعمال کی حفاظت کر سکیں، خصوصاً نمازوں کی حفاظت کر سکیں. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. ربنا اغفر لي ولوالدي وللمؤمنين يوم يقوم الحساب. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم ولسائر المسلمين فاستغفروه من كل ذنب إنه هو الغفور الرحيم. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فإن خير الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. عباد الله يرحمكم الله، إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. ولذكر الله أكبر والله يعلم ما تصنعون.